Hello students, good morning to everyone. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is 2nd of May and you know that the lockdown has been extended. So as I told you that you have to stay at your home, you have to study well. You are having a golden opportunity to stay at your home and to study. Clear? And you are getting enough time to utilize that time. So I request you all, please utilize the time. Let's start the lesson. Let's start karte hain for class 12th, especially for the class 12th. But I told you that this session is necessary for everyone. So everyone can watch this video and they can get the information regarding different things. Let's start the session को start करते हैं with a very beautiful lines I have pasted here for you, because motivational quote is very important, बहुत important है, that provide us the energy, जो हमें बहुत सारी एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए. देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है. द बेस्ट एंड द फास्टर वे टू एक्वायर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, आप लूज़ कर रहे हो उसको, आपको लगता है कि यू आर लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको आता तो है बट यू आर नॉट एबल टू राइट, आपको आता तो है बट यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट, देन यू हैव टू डू व्हाट यू स्केयर टू डू. अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक से डर लग रहा है, जैसे कोई आपने ऐसा टिपिकल टॉपिक पढ़ा है, तो आप उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, आप वही चीज़ करिए जिससे आपको डर लगता है, और जब आप ऐसा करोगे तो कंफर्म है यू विल गेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो विद दिस मोटिवेशनल लाइन लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते. लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे. यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द मतलब हाउ द वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन in a different way. I told you about the contraceptive methods. Clear? In this part we have discussed how can we motivate the people for the population control. Then we studied about the contraceptive method. I told you what is contraception and what are the contraceptive method. Clear? And we will today we will discuss this method step by step. Clear? And second one, if suppose the question will come and question ask you apart from the contraceptive method को छोड़ के tell suggest some other points, other methods to control the population, जिससे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है उस पर कर्व लगा सके, उस पर कंट्रोल कर सकें. तो दीज आर द यू कैन सी फ्रॉम द 2nd to 6th पॉइंट वी कैन राइट डाउन दैट स्टैच्यूरी रेजिंग मैरिजेबल एज, इंसेंटिव टू द कपल्स. लेजिस्लेशन में कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट सम नॉर्म्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स लेके आए, कुछ ऐसे लॉ लेके आए, ठीक है, तो जस्ट हैव द स्मॉल फैमिली, जिससे स्मॉल फैमिलीज हो, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुके. और नेक्स्ट है अवेयरनेस और लास्ट है एजुकेशन. तो दीज मेथड वेयर देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्शन. यहाँ पे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट दीज मेथड कैन बी यूज्ड. तो अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड व्हाट अदर थिंग्स यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द 2nd to 6th पॉइंट. 2nd से लेके 6th पॉइंट तक ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इन दिस स्लाइड इट इज़ रिटन हियर दैट बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन both are the same, like as it is written here that birth control is synonymous with contraception. Refer to deliberately prevent or reduce the likelihood, मतलब if they want of pregnancy or childbirth, means if female want that she should avoid the pregnancy, then she can use the contraception or contraceptive method. So I have written here unwanted pregnancy, to avoid the unwanted pregnancy. Clear? So let's see what are the birth control method or contraceptive methods. Clear? Those can be used by the female or male. ठीक है, it is available for both one, दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है. तो बहुत डिफरेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड इज गोइंग टू बी यूज्ड बाई द कपल or it may be by the male or female, what characteristics should be there of the birth control devices. उन जो मेथड है, वो जो डिवाइसेस हैं, उनके क्या फ़ीचर होने चाहिए, ठीक है, सो दैट दे कैन यूज़, तो उससे जो वो यूज़ कर सके. लेट्स सी उनके क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए. फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. फर्स्ट, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. means if suppose a male or female is going to use any contraceptive method, that should be user friendly, means उसको आराम से easily use कर पाए, ठीक है. नेक्स्ट है easily available और effective भी होना चाहिए, मतलब वो अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए.
नेक्स्ट है रिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वेन एवर द कपल वांट टू मतलब मेंटेन द गैप बिटवीन द टू चाइल्ड और दे वांट टू अवॉइड अ प्रेगनेंसी, देन दे कैन यूज़, एंड व्हेन दे वांट द चाइल्ड दे कैन they just stop the use of the contraceptive method and they can conceive, ठीक है, मतलब फीमेल कैन कंसीव। क्लियर है। तो रिवर्सिबल का मतलब कि ये हो गया कि व्हेन दे डू नॉट वांट देन दे आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एंड व्हेन दे वांट द चाइल्ड, जब उनको चाइल्ड चाहिए, देन दे अवॉइड द यूज़ एंड दे विल हैव द चाइल्ड। तो रिवर्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमानेंट हो जाए, ठीक है। हम और एक दो मेथड मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे परमानेंट हो सकता है, मतलब उसके बाद वो रिवर्सिबल, मतलब दे कैन नेवर हैव अ चाइल्ड, वो कभी फिर चाइल्ड उनके नहीं हो सकती, खुद से नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है लेस और नो साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन एवर दे आर गोइंग टू यूज़ एनी सच डिवाइसेस देन देयर शुड नॉट बी लेस और नो साइड इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर, मीन्स द डिवाइसेस शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ द कपल, मतलब उनके सेक्सुअल डिज़ायर में कोई भी लैक नहीं होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। और इट शुड मेंटेन द प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए सो दैट द अदर कैन नॉट नो, और लोगों को पता ना लग पाए, ठीक है। तो दीज आर द सम फीचर ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये सब कुछ फीचर हैं। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ और यू आर गोइंग टू एडवाइज एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू एनी वन, we have to just focus on these points, we have to be careful on these points, are they following these criteria or not, क्या ये सारे क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ में आया, तो क्लियर हो गया। तो व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड व्हाट आर देयर आइडियल फीचर और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम तीन मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या है कि देयर इज़ नो डिवाइस इज़ यूज्ड, कोई डिवाइस यूज़ नहीं होती। दिस इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द नॉलेज, ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। फॉर टू यूज़ द नेचुरल मेथड द कपल शुड बी एजुकेटेड, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, देन द कपल कैन गो फॉर द नेचुरल मेथड, तभी जो है नेचुरल मेथड को यूज़ कर सकता है। समझ में आए। और नेचुरल मेथड में मैंने जैसे भाई बताया कोई भी डिवाइसेस का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज इट अवॉइड द प्रेगनेंसी, दैट्स वाई वी कैन कंसीडर दिस एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड and this is a natural method. Let's see what are the natural method. The first one is periodic abstinence. देखो नाम से थोड़ा सा साउंड क्या कर रहा है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब नहीं है, मतलब पीरियोडिक आपको पता है ना, पीरियड, देयर इज़ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर इज़ ए पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मैंने आपको इसलिए मैंने यहाँ पे को स्लाइड भी लगा दी है, इसमें हम लोग ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases. First to 5 days menstrual phase, 6 to 14 or 15 that is proliferative phase, and from the 15 to 28 what, luteal or secretory phase. Then when I taught you this cycle, then I told you that the releasing matlab the when the ova is released in this cycle, you can see the ova is going to release at the which day, 14th day. But I told you it is not necessary, it is not necessary here that always the ovulation will take place at the 14th day. मीन्स जो ओवा का रिलीज़ हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 14th डे पे ही होगा, ठीक है। दैट कैन टेक प्लेस फ्रॉम द 10 to 17 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अगर हम इसको रेंज थोड़ी सी बढ़ा लें इसकी, ठीक है, इसका ड्यूरेशन थोड़ा हम फ्लक्चुएट कर लें, तो इट कैन मतलब द ओव्यूलेशन कैन टेक प्लेस, मतलब मोस्ट जो चांसेस होंगे इसके वो 10 से लेके 17 डेज तक होंगे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो कपल को हाउ द कपल विल हाउ द मेल और फीमेल विल गेट टू नो कि व्हेन द ओवा इज़ गोइंग टू रिलीज, हाउ दे कैन रिमेंबर दिस 10 to 17 days. So see here that they can remind, they can notice the first day of the menstrual cycle, and then they can count the 9th or 10th day of the menstrual cycle. From the 10th day to the 17th day, ठीक है, in this cycle they should avoid copulation, ठीक है। वो क्या कर उनको चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कॉपुलेशन को। इफ़ दे विल अवॉइड द कॉपुलेशन बिटवीन 10 to 17 days ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन देर विल बी नो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। वाई? बिकॉज यू नो दैट फ्रॉम द 10 to 17 days देर इज़ ए चांस ऑफ ओवा टू रिलीज,
इसी पीरियड में चांस होता है ओवा का रिलीज़ होने का। समझ में आया? अब देखो इससे ना ही सेक्सुअल डिज़ायर में कुछ भी होगा, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। बट दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी वन इज़ परफॉर्मिंग द सेक्सेस विद द डिफरेंट पार्टनर देन दे शुड अवॉइड दिस थिंग, वो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे कैन सफ़र फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि 10 to 17 डेज में नोन एज, इसको हम और क्या बुला सकते हैं, फर्टाइल पीरियड। 10 to 17 डेज इज़ नोन एज फर्टाइल पीरियड और 10 to 17 डेज इज़ आल्सो नोन एज रिस्क पीरियड, इसको हम रिस्क पीरियड भी बुलाते हैं। ठीक है, तो अब कपल विल अवॉइड द कॉपुलेशन क्वाइटस बिटवीन द 10 to 17 डेज एंड देन दे कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी। समझ में आ गया? इट इज़ रिटन हियर, आप यहाँ से नोट कर लेना। क्लियर हो गया? नेचुरल मेथड, पहला मेथड समझ में आया, व्हाट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ठीक है, इसी 10 to 17 डेज़ को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है, रिस्क पीरियड क्या होता है, देन यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, पहला मेथड क्लियर है। एंड रिमेंबर दिस मेथड कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैन बी ट्रांसफर व्हेन देयर इज़ ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑर्गन्स। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है ऑर्गन्स का, इफ़ एनी वन ऑफ देम, अगर किसी एक को है डिजीज़, देन इट कैन ट्रांसमिट टू द अदर आल्सो, दूसरे को भी हो सकती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द सेल्फ कंट्रोल, ये पूरी तरह से अपने ऊपर मेल पे कंट्रोल पे डिपेंड करता है। एंड इट टोटली डेलिबरेटली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मेल, ये मेल पूरी तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फीमेल। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, देखो नाम से ही पता लग रहा है विड्रॉल, तो मैं पता है आप बैंक में आपने सुना होगा विड्रॉ करने जा रहे हैं मनी को, विड्रॉ मतलब निकाल लेना। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस भी नाम से देखो पता लग रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ ए इंटरप्शन इन द क्वाइटस, व्हेन देयर विल बी अ इंटरप्शन बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द क्वाइटस व्हेन द मेल रीच एट द ऑर्गेजम, orgasm means during copulation the male reach at a particular time when the male is going to, the penis is going to ejaculate the semen. ठीक है, that is known as what, male orgasm. Before that orgasm, before ejaculation, the male can withdraw the penis so that there should not be any ejaculation. ejaculation नहीं हो पाएगा, और ejaculation नहीं होगा तो then there will be no insemination. Clear है? And the couple can prevent the pregnancy by this method. Clear? But I told you this method is totally depend on the self control, because when any male reach at the orgasm, then it is very difficult for the male that he will remember to ejaculate to interrupt the coitus. Clear? So this is another method that comes under the natural method. Again, this method cannot prevent from the sexually transmitted diseases. Now come to the third one, lactation amenorrhea. Wherever in the biology there is a, like as you sometime in the NEET exam, in this, so many competitive exam, you will get the question based on the spelling. आपको spelling पे questions मिलेंगे. ठीक है, like as you will get the 4 option and the question will ask you that which spelling is correct for the diarrhea. So wherever in the biology there is a RHEA word, double R H E A, RHEA. ठीक है, तो that sound will be double R H E A. तो remember, so wherever there will be a diarrhea, DIARRHEA. Clear? Here what is written here, lactation amenorrhea. So there will be a intense lactation. ठीक है, after the parturition there will be a intense lactation. When up to the time when there will be a intense lactation, there will be no menstrual cycle, means there will be no ovulation. Clear? Means when any female give the birth to the child, there will be a parturition. After the parturition there will be a intense lactation. During the intense lactation there is no chance of the menstrual cycle or of the ovulation. Clear? But if we cannot ensure that. It is not always true. We cannot ensure that, we cannot always say that it will take place. So that's why it is a risk, it is risking method. This method is a method of risk.
क्लियर, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस मेथड, इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो देर आर दीज थ्री मेथड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, नेचुरल मेथड। ये तीनों मेथड नेचुरल में आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इन दिस मेथड देर इज़ नो डिवाइसेज आर यूज्ड, कोई भी डिवाइसेज यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है, दैट्स वाई दीज ऑल मेथड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल। क्लियर। तो इन द नेचुरल मेथड वी डिस्कस फर्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ periodic abstinence. Second one we discuss about that what, that is withdrawal or coitus interruptus, and third one we discuss about the lactation amenorrhea. Clear. Now we are going to discuss about the barrier method, but before going to those method, I have written here what are the advantages of the natural method, that there will be no side effect. Clear. This is the advantage of the natural method, but what will be the disadvantage of the natural method? The chance of failure is high. Clear. So this is the disadvantage and this is the advantage of the natural method. Side effects are nil, and disadvantage, the chances of failure is high. Clear. So we have discussed the natural method. Now we are going to discuss about the barrier method. ठीक है. In this method there will be a use of the devices. इसमें devices का use होगा. Before this there was no use of any device. Only there should be a knowledge, there should be awareness, and there will be a self confidence and self control. Clear. Now come to the barrier method. As the name sound, the barrier means these method will avoid the meeting of the sperm with the ovum. There will be no meeting of the sperm or the ovum. ठीक है. That's why it is known as what, barrier method. Clear. Because the barrier means that stop something, जो किसी चीज़ को क्या करे, रोके. तो that's why it is these method which we are going to study under this, that is known as what, barrier method. So let's see what are the different type of barrier methods. The first one that it sounds, I think it is a very common method in our society, and the most of the male or most of the female go for this method. So let's discuss with this method. I have just added the slide also which is showing the figure of these method. So let's start these method. The first one is that these method are known as, मतलब this first barrier is known as condoms. ठीक है. The condoms are the available for the male as well as for the female. It is available for the both. Clear. And this is a device which act as a barrier. Actually it is made up of rubber or latex. ठीक है. इसका बना होता है rubber और latex. It is very thin. ठीक है. The condoms are very thin and they are used to cover, either they will cover the penis or they will cover the vagina. ठीक है. That's why when there will be a ejaculation by the penis, there will be ejaculation of the semen that will remain in the that condoms. वो condoms में ही रह जाएगा. ठीक है. और ये सबसे फेमस है. दिस इज़ द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ द बर्थ कंट्रोल डिवाइस. ठीक है. जो बर्थ को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल होगा, बर्थ कंट्रोल. ठीक है. इट इज़ अ बैग लाइक ट्यूब. ये बैग लाइक ट्यूब होता है. ठीक है. और सबसे जो पॉपुलर है इसमें, दैट इज़ नोन एज निरोध. ठीक है. दिस इज़ द नेम ऑफ द वन ऑफ द कॉन्डोम, दैट इज़ मोस्ट फेमस मार्केटेड कॉन्डोम. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू द कॉन्डोम इज़ अवेलेबल फॉर द मेल. सी दिस इज़ द सिंबल ऑफ द मेल, यू नो दैट, and this is symbol of the female. So the male condom you can see this is a cylindrical like and it is closed at one point. ये एक पॉइंट पे क्या होता है, क्लोज होता है. ठीक है. एंड इट कैन कवर होल पेनिस. ये पूरे पेनिस को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है. एंड it whenever there will be ejaculation after the orgasm, all the semen will remain in the this condom and there will be no ejaculation of the semen in the vaginal tract. ठीक है. and this is a diagram of the female condom. clear. तो मेल कॉन्डोम इज क्लियर. नाउ कम टू द फीमेल कॉन्डोम. फीमेल कॉन्डोम पे आते हैं. फीमेल कॉन्डोम इज मतलब लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द मेल. क्लियर. एक्चुअली इट इज़ नोन एज फेमिडोम. इट इज़ आल्सो नोन एज फेमिडोम बिकॉज ऑफ इट्स शेप. And it is not made up of that latex sheet, it is made up of polyurethane sheath. Clear. And it is also the closed at one end and open at the another end. Clear. It will be closed at one end and open will be another end. एक साइड ओपन होगा, एक साइड क्लोज होगा. ठीक है. अब इसकी एक एडवांटेज ये है कि बिकॉज फीमेल कॉन्डोम कवर दैट स्किन आल्सो, मतलब वो लेबिया पार्ट को भी कवर कर लेता है. फीमेल कॉन्डोम दैट कवर द होल पार्ट ऑफ द वेजाइनल पार्ट. ठीक है. तो देयर कैन नॉट बी एसटीडी. कुछ सम टाइप ऑफ एसटीडी कैन नॉट बी ट्रांसफर. कुछ ऐसी एसटीडी हैं बाय यूजिंग दिस फीमेल कॉन्डोम दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल टू द फीमेल. आई हैव जस्ट एडेड वन स्लाइड आल्सो, यू कैन सी इन दिस. दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल कॉन्डोम. इट कवरिंग द स्किन. ये स्किन को भी कवर कर ले रहा है.
ठीक है। दैट्स वाई वट एवर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ट्रांसफ़र द वायरसेस और बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द स्किन दे कैन नॉट ट्रांसफ़र। समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फीमेल कॉन्डोम ओवर द मेल कॉन्डोम। तो इट इज़ क्लियर नाउ, फर्स्ट बैरियर मेथड इज क्लियर नाउ। नाउ कम टू द सेकेंड बैरियर मेथड, दैट इज vaginal diaphragm. Diaphragm, because you know that in our body there is a diaphragm. Diaphragm is a membrane. Diaphragm एक membrane की तरह होती है। तो देखो यहाँ पे ये membrane है, ठीक है, ये membrane है पूरी, और ये रिम लगी हुई है चारों तरफ इस तरह से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डायाफ्राम एक क्या है, इसको डायाफ्राम नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है और साइड में इसके पेरीफेरल रीजन पे रिम लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इसमें जो है स्पर्मिसाइडल क्रीम का भी यूज़ होता है। आपको मैंने बताया था जहाँ पे भी लास्ट में साइड वर्ड आ जाए, CID, फीटीसाइड ना, तो साइड मतलब होता है क्या, किल करना। तो वेजाइनल डायफ्राम में क्या होगा, इट विल बी अ रबर थिन डोम शेप, अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया, इट इज़ अ डोम शेप, फ्लेक्सिबल रिम, इसके पास फ्लेक्सिबल रिम होगी। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, फिट्स ओवर द सर्विक्स, ये पूरी तरह से सर्विक्स पे फिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगा होगा, स्पर्मिसाइड, इट होल्ड्स स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड मीन्स क्रीम, और सम केमिकल्स आर प्लेस्ड ओवर देयर, उसमें कुछ केमिकल्स लगा देते हैं, ठीक है, ओवर द ओपनिंग ऑफ टू द यूट्रस, जिधर से वो यूट्रस की साइड जिधर पार्ट रहता है उधर क्या लगा देते हैं, स्पर्मिसाइड लगा देते हैं। दैट विल किल द स्पर्म, वो स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। एंड एक एडवांटेज इस मेथड की ये है कि इट इज़ इंसर्टेड 2 आवर बिफोर द सेक्स, ठीक है, ऑफर लिमिटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम STD, मतलब इट विल प्रिवेंट फ्रॉम द STD बट लिमिटेड, नॉट, इट कैन नॉट प्रिवेंट ऑल द STD, ठीक है। कि अगर किसी को भी STD से बचना है तो केवल एक दो, मतलब एक ही मेथड है, दैट इज़ कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स प्रोवाइड द फुल सेफ्टी फ्रॉम द STDs एज वेल एज फ्रॉम द प्रेगनेंसी, दैट्स वाई दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड बैरियर मेथड, वो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड बैरियर मेथड है। समझ में आ गया, तो यहाँ तक हो गया, वेजाइनल डायफ्राम समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब बैरियर की तरह बिहेव कर रही हैं, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर्विकल कैप, नाम से ही देखो पता लग रहा है, इट विल बी अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, दैट विल कवर द सर्विक्स, ये सर्विक्स को कवर कर लेगा, ठीक है। मतलब देयर इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द सर्विकल कैप एंड द डायाफ्राम, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड इन दिस सर्विकल कैप द स्पर्मिसाइडल जेलीज आर यूज्ड, यहाँ पे क्रीम या केमिकल नहीं लगाते, यहाँ पे जेलीज लगाते हैं, और ये डज़ नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द STD, ये इसकी डिसएडवांटेज है कि ये STD से प्रोटेक्ट नहीं कर भी लगा दिया है। इस तरह से ये सर्विकल कैप होता है, ठीक है, इस पर ये स्पर्मिसाइडल क्रीम अंदर की साइड्स पे लगा देते हैं, ठीक है। एंड व्हेन एवर देयर विल बी एजुकुलेशन द स्पर्म विल किल, स्पर्म को ये क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ स्पर्मिसाइड्स, नाम से देखो पता लग रहा है स्पर्मिसाइड्स, दीज आर नॉट एनी डिवाइसेस, दीज आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। दीज केमिकल्स आर कैन बी अप्लाइड एट द वेजाइनल ट्रैक, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ जेलीज, ये जेलीज़ के फॉर्म में हो सकता है, इट क्रीम फॉर्म, फोम, स्पंज और टैबलेट के फॉर्म में होता है, एंड इट इज़ इंसल्टेड जस्ट बिफोर द सेक्स। तो whenever there will be a ejaculation by the penis, the sperm will killed by the jellies, cream और sponge, because that's why they are known as spermicides, इसीलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, spermicides. So these are the barrier. Among these barrier method, I told you one of the barrier method that can prevent from the STDs as well as from the pregnancy, and there is no side effect, there is no just dissemination, matlab there is no we can say that will maintain the privacy, the full privacy will be maintained, that's why that is the most accepted barrier method. So whenever you will get a question ki what is the most accepted barrier method, you can write down about the condoms, clear hai. So in this part we have discussed what about the contraceptive method. Today we discuss two contraceptive method, one is the natural method and another one is the barrier method, clear now, ठीक है। And in the next class we will discuss so many contraceptive method, ठीक है। तो till then just keep studying whatever I am just teaching you, I am just telling you, just write down everything, think about it. If you do have any problem, whenever I am just talking with you in these terms, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। If you do have apart from the topic, अगर आपको टॉपिक के अलावा भी कुछ पूछना है, then you can write down in the comment box or you can write down in the group,
ठीक है, देन आई विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड, आपके माइंड में कोई डाउट न रह जाए, बिकॉज यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग, आपको अवेयर होना चाहिए इन मेथड से। क्लियर? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंड कर रहा हूँ सेशन को, ठीक है। टिल वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, till then, and please press the like button if you like the session, please press the like button and please share this session maximally, बहुत ज़्यादा जितना भी हो सके मैक्सिमली शेयर करिए, सो दैट दीज इन्फॉर्मेशन कैन बी डिसेमिनेट, ये पहुंच सके लोगों तक, ठीक है। सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।